Hello guys, so we are back again with our paper 3 of B.Ed second year, that's creating an inclusive school, right? We have gone through all the essence of creating an inclusive school and different kinds of disabilities in previous videos. So see, today's topic is a bit interesting, so it's much easier. See, transition from segregation to inclusion in education. शिक्षा में पृथक्करण से समावेशन की ओर परिवर्तन. सी, here we have to focus on these three words: transition, segregation and inclusion. Transition means to change. Okay, suppose for general example, changing from one place to another. A man starts walking from here, A starts walking from here, and the distance he covered is 5 kilometers, right? And this is place 2, this is place 1. A is the same person. ठीक है, तो ये क्या है? ट्रांजिशन है. ये एक ट्रांजिशन 5 किलोमीटर्स का उसने कवर किया है. लाइक आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन इन लेमन वर्ड, नॉट इन एकेडमिक लैंग्वेज बट इन लेमन. ठीक है, लेमन लैंग्वेज, लेमन टर्म्स. तो और दूसरा एग्जांपल है, समझ सकते हैं आपकी, जैसे पानी है. वाटर हैव 3 स्टेट्स इन इटसेल्फ. वन, इट इज solid, that's ice. Liquid, we call it water. And gas in form of vapors. ठीक है, see now here water itself have transit stage and 3 states, right? It's 0 degree at its normal temperature. Vapor, it's I guess 100 degrees Celsius, I guess. It converts into vapors, right? So see, in similar manner, when we talk about humans, a person is in stage of, suppose he is toddler, then he becomes a child, right? Then then he become child, then he become teenager, then adult, and then old. So this is the transition stage of a human. Understood? So यहाँ पे हमने transition का मतलब पढ़ा कि transition means to change. ठीक है, अब देखिए segregation का मतलब कि segregation simply means to segregate. Suppose this is one whole, right? One whole circle, and we have segregated it in 2 parts, part 1 and part 2, right? This is the meaning of segregation. And segregation to inclusion means to include, segregation means to divide, right? It means to divide, and it means to unite or include. So in education, see, now we are moving to the topic that earlier in ancient times, children with special needs or disabled children and normal children were having schools for the purpose of education and practice of teaching and learning, right? So but see here, if these special children or disabled children, ठीक है, इन्हें अलग स्कूल में पढ़ाया जाता था और इन्हें अलग स्कूल में पढ़ाया जाता था. पर देखिए, जब ये अलग स्कूल में पढ़ेंगे तो ये एक साथ में हिस्सेदारी यानी कि पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे. इन व्हाट टर्म्स? इन टर्म्स ऑफ कुरिकुलम, ठीक है, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग,
इक्वालिटी इन एजुकेशन, ठीक है, और क्या है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ, राइट, यहां तक समझे आप कि अगर इन्हें हम एक साथ नहीं पढ़ाएंगे तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस में ये लोग पॉप अप नहीं कर पाएंगे, किसके कंपैरिजन में, दिस, इन कंपैरिजन टू दिस नॉर्मल चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ हमने देख लिया ये, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हुए, अब यहाँ पे हम सबसे पहले वी विल कवर द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन, ठीक है। हिंदी में आप इसे पढ़ लीजिए। पृथक्करण से समावेशन की ओर परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। सी, अब पहले इंग्लिश में देखेंगे हम। आई विल बी यूजिंग बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एज अ बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग, राइट, दोनों में मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। Earlier, children with disabilities were educated separately in schools. This system was called segregation. ये मैंने आपको बताया कि बच्चे जो हैं अलग स्कूल में पढ़ाए जाते थे. This system was called segregation. Gradually, education moved toward inclusion, where disabled and normal children learned together in the same classroom. धीरे धीरे क्या हुआ कि जो अलग अलग स्कूल्स थे वो ना होकर एक ही स्कूल के अंदर, नाउ यू कैन सी अ हैंडीकैप्ड चाइल्ड and a normal child both are studying the same subject, same curriculum, same activities, same art and craft, and same learning experiences, ठीक है। ये सब चीजें एक साथ ही कर रहे हैं कौन, स्पेशल और नॉर्मल चिल्ड्रन, ठीक है। तो अब देखिए आगे, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए, this change is called transition from segregation to inclusion, a shift from isolation to participation, and from special schools to inclusive schools, ठीक है। दिस चेंज, ये जो चेंज है किस चीज में, कि सेग्रीगेशन से हम एक ही क्लासरूम के अंदर दोनों तरह के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इज कॉल्ड ट्रांसिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन। ट्रांजिशन हो रहा है सेग्रीगेशन से इंक्लूजन की तरफ, ठीक है। अलग अलग से इंक्लूजन, एक ही इंक्लूड कर लिया हमने दोनों तरह के बच्चों को, स्पेशल चाइल्ड को भी और नॉर्मल चाइल्ड को भी, एक ही क्लासरूम में टीचिंग के लिए, ठीक है ना। ये इसका सिंपल सा मतलब है, ठीक है। पहले विकलांग बच्चों को अलग विशेष विद्यालयों में पढ़ाया जाता था, इसे पृथक्करण या सेग्रीगेशन कहा जाता था, ठीक है। मान लिया है कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, चाहे वे सामान्य है या विकलांग, इसे हम समावेशन या इंक्लूजन कहते हैं, ठीक है। यह परिवर्तन अलगाव से सहभागिता की ओर और विशेष विद्यालयों से समान विद्यालयों की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। मतलब कि what's transition from segregation to inclusion is, it is a shift from isolation, अलग थलग बच्चा कोई पढ़े एक अलग स्कूल में, उससे जगह दोनों तरह के बच्चे एक जगह पार्टिसिपेट कर सके, देन फ्रॉम स्पेशल स्कूल्स टू इंक्लूसिव स्कूल्स, की एक उनके लिए एक अलग स्पेशल स्कूल ना खोलकर एक ऐसा इंक्लूसिव स्कूल हम खोल दे जहाँ पे दोनों तरह के बच्चे आकर पढ़ सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। ताकि वो अलग थलग फील ना करे, आइसोलेशन में ना रहे, अपने आप को दूसरों से भिन्न ना समझे, समाज का हिस्सा जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति अपने आप को समझता है वैसे ही समझे, है ना। तो ये सब चीजें हैं, ये सब प्रकरण है। अब देखिए अर्ली हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की, जो विकलांग बच्चों की शिक्षा का प्रारंभिक इतिहास क्या कहता है। So here we see in ancient times, children with disabilities were neglected or isolated. See, I'm not criticizing any religion or any civilization, but the syllabus itself shows that in Greek and Roman times, doctors and scholars begin to care for handicapped people by providing asylums. उनको अलग रखकर जो है उन्हें
care or proper care because they need different kind of nutritious food, right? उनका जो है बैलेंस करना पड़ता है एजुकेशन को भी, उनकी जो है डाइट को भी, किस स्पेसिफिक जो जैसे कि सपोज हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है उसे ज़्यादा सॉल्टी डाइट नहीं दे सकते आप, फॉर दिस काइंड ऑफ पर्पसेस दिस थिंग वाज देयर, राइट? हेयर आप अगर अपने ही सिविलाइजेशन, अपने सनातन की बात करेंगे या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ठीक है, इन सिविलाइजेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले से ही क्या थी, यहाँ थी अष्टावक्र गीता, यानी कि वी नेवर नेग्लेक्टेड देम, वी ऑलवेज टुक देम एज अ पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी, राइट? कुछ एक जो है असमानताएं हो सकती हैं, परंतु हमने इनको कंप्लीटली नेग्लेक्ट या आइसोलेट नहीं किया, इन्हें भी समाज में उतना ही अधिकार दिया, ठीक है, उतना ही इनको सम्मान दिया, ठीक है, बजाय कि वह किसी भी डिसेबिलिटी से जूझ रहा है या जूझ रही है, हमने उसे कभी भी जो है आइसोलेशन के अंदर ऐसे अलग थलग करके नहीं छोड़ा कि उनके लिए कुछ एक अलग सा हमने बना दिया हो। अब देखिए, वी विल मूव टू द सेकंड पॉइंट। In ancient times, children with disabilities were neglected and often isolated from the society. We have discussed it. In Greek and Roman societies, doctors, scholars tried to care of disabled people by creating asylums for them. ठीक है, अभी यहाँ देखिए उनके लिए asylum ही बना दिया अलग से. Asylum is a kind of, you can say, a kind of, I guess, I think so, एक अलग से एक आइसोलेशन में प्लेस की भाई इन बच्चों की जो है स्पेशल केयर करो और इनको अलग रखो। कहाँ से अलग रखेंगे हम? सोसाइटी से। तो इनका जो गैप है वो बहुत ज्यादा था। नो वन वॉन्ट्स टू सी देम, नो वन वॉन्ट्स दैट दे शुड बी विद अस। कोई इन्हें देखना नहीं चाहता, कोई इन्हें अपने पास रखना नहीं चाहता। तो इसलिए द फर्स्ट स्पेशल एजुकेशन एफर्ट स्टार्टेड इन 16th सेंचुरी। सबसे पहला जो है स्पेशल एजुकेशन का एफर्ट जो स्टार्ट हुआ वो 16वीं शताब्दी में हुआ। इन 1555 स्पेनिश monk Prado Ponce de Leon taught deaf children to read, write and speak। सबसे पहले जो ये स्पेनिश हमारे जो मोंग थे, पेड्रो पोंस डी लियोन, इन्होंने जो है डेफ चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे हियरिंग इम्पेयरमेंट से जूझ रहे थे, ठीक है, श्रवण क्षमता जिनकी नहीं थी, उनको क्या क्या सिखाया उन्होंने? रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। इन 18th सेंचुरी फ्रांस, JMG Trada taught a wild boy of Avignon, right, using behavior modification and sensory training methods, ठीक है। इसके बाद में देखिए थॉमस गेलाडूट 1817 के अंदर स्टार्टेड फर्स्ट स्कूल फॉर डेफ इन USA, ठीक है। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, बस आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि 1555 में, 18th सेंचुरी में फ्रांस में, यहाँ स्पेन में और यहाँ पर US के अंदर, यहाँ पे देखिए हिंदी में क्या लिखे, प्राचीन समय में विकलांग बच्चों के लिए समाज से अलग थलग रखा जाता था। यूनान और रोमन समाजों विद्वानों ने विकलांगों के लिए आश्रय स्थल यानी कि असाइलम्स बनाए, ठीक है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत हुई। प्रेडो पोंस डी लियोन, मैंने बताया आपको, 1555 ने बहरों को पढ़ाने और बोलना सिखाया। JMG टाडा फ्रांस ने जंगली बच्चों को सिखाकर व्यवहार संशोधन तकनीक की शुरुआत की, ठीक है, ठीक है। जंगली बच्चे जो थे उनको, जंगली बच्चे वी कैन से ट्राइबल जो पीपल थे उनके बच्चे, ठीक है, ट्राइबल पीपल, आम भाषा में हम इन्हें स्केड्यूल ट्राइब्स भी कह देते हैं, ट्राइब्स। आज के युग में, आज के भाषा में एसटी बोलते हैं हम इनको। ये ऐसे बच्चों की शायद बात कर रहे हैं यहाँ पे। थॉमस गेलाडूट 1817 के अंदर
जो है इन्होंने, तो थॉमस कैलरिट ने 1817 में अमेरिका में पहली बार बधिर विद्यालय स्थापित किया, यानी कि स्पेशल स्कूल ही स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1817, राइट। अब देखिए ग्रोथ ऑफ स्पेशल एजुकेशन का जो है वो विकास विस्तार किस प्रकार हुआ, ये हम देखेंगे। ठीक है, इन 18th एंड 19th centuries स्पेशल स्कूल्स वर ओपन इन यूरोप एंड अमेरिका फॉर डेफ ब्लाइंड एंड मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन। 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर स्पेशल स्कूल्स जो हैं वो सबसे पहले यूरोप और अमेरिका में डेफ ब्लाइंड एंड मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन के लिए स्टार्ट हुए हैं। 3 श्रेणियां देखी ली गई है विशेष तौर पे। डेफ यानी हियरिंग इम्पेयर्ड, ब्लाइंड यानी विजुअली इम्पेयर्ड, HI VI, एंड मेंटली यानी कि MR मेंटली रिटार्डेड, मेंटली चैलेंज के अंदर आ जाता है। दीज स्कूल्स हेल्प मैनी चिल्ड्रन बट ऑल्सो आइसोलेटेड देम फ्रॉम नॉर्मल सोसाइटी। स्पेशल स्कूल तो बने, बट सी इफ स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल स्कूल बने स्पेशल चाइल्ड के लिए, तो दिस इज द सोसाइटी, सपोज देयर इज अ गैप। ठीक है, इन्हें सोसाइटी में रहने नहीं दिया जा रहा, इन्हें यहीं पर ही पढ़ाया लिखाया जा रहा है, तो ये आइसोलेटेड हैं। ठीक है, नॉर्मल सोसाइटी, दिस इज द नॉर्मल सोसाइटी। इसके बाद देखिए लेटर एजुकेशनिस्ट realized that such separation created inferiority among disabled children। इनके अंदर एक inferiority complex, inferiority, that we are inferior and these are superior, ये हमसे ज्यादा सशक्त हैं, सुपर हैं। ठीक है, ये हमसे ज्यादा अपर क्लास हैं, अपर क्लास हैं। ठीक है, और हम क्या हैं, लोअर क्लास हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, लाइफ एक्सपीरियंसेस, and what all other dimensions related to human life। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को आप ऐसे अलग थलग रखेंगे तो ये बहुत नेचुरल है कि उसके अंदर इस प्रकार का विचार आने लग जाए कि भाई मैं तो अलग हूँ, दूसरा व्यक्ति जो है वो मुझसे बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, और क्या कि मैं इंफीरियर हूँ उनसे और दूसरा सुपीरियर है मुझसे। ठीक है, देखिए हिंदी में समझते हैं। 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप और अमेरिका में विशेष विद्यालय खोले गए बहरों, अंधों और मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए, ये हमने पढ़ लिया। इन विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता। अलग होने के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे शिक्षावादियों को समझ आएगी अलगाव बच्चों में हीनता की भावना पैदा करते हैं कि हम दूसरे व्यक्तियों से हीन हैं, अलग हैं, इंफीरियर हैं। ठीक है, समझे। देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। मीनिंग ऑफ मेन स्ट्रीमिंग, मुख्य धारा में लाना। ठीक है, ये देखिए मीनिंग ऑफ मेन स्ट्रीमिंग, मेन स्ट्रीमिंग का जो है मतलब क्या होता है। मेन स्ट्रीम मीन्स, देखिए सपोज विद एन एग्जांपल देयर आर 2 streams, right? One stream is a bit narrow and it is wide, it consists of more people। ठीक है, ये यहाँ पे जो है डिफरेंट प्लेसेस से आए हुए, डिफरेंट जेंडर्स, ठीक है, डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, और क्या ले सकते हैं हम इसमें, डिफरेंट क्लास, डिफरेंट कास्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल चिल्ड्रन। ठीक है, अब जो है ये देखिए ये कितना नैरो स्कोप है, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रकार का जो व्यक्ति है वो है स्पेशल चिल्ड्रन, वो पढ़ रहा है इस स्कूल में। यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये मुख्य धारा नहीं है। मुख्य धारा में क्या हुआ, इसको इसमें समावेशन करना पड़ा। ठीक है,
किसको? स्पेशल चाइल्ड को नॉर्मल स्कूल्स के अंदर। समझे आप? यही है मीनिंग ऑफ मेन स्ट्रीमिंग, की मुख्य धारा में लाने का अर्थ यही है। मेन स्ट्रीमिंग मीन्स एजुकेटिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन विद नॉर्मल चिल्ड्रन इन रेगुलर स्कूल्स बट विद सम स्पेशल सपोर्ट लाइक स्पेशल एजुकेटर और टूल्स, यानी कि कुछ एक उपकरणों के साथ में, जैसे कि जिसको दिखाई नहीं देता, जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसके लिए ब्रेल लिपि, जिसको सुनाई नहीं देता उसके लिए एक हियरिंग एड, जो ढंग से लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, जिसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उसके लिए चलने फिरने के लिए कोई ऐसा लिम्ब आर्टिफिशियल बनाना, या उसे चलने के लिए सीढ़ी देना ना, इस प्रकार की चीजें। अंधे के लिए जो है हम स्टिक का यूज करते हैं किसी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, है ना, इस तरह की सपोर्ट्स के साथ में उनको पढ़ाना। दिस कॉन्सेप्ट बिकेम पॉपुलर इन 1975 विद एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड एक्ट यूएसए। एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड एक्ट यूएसए 1955 के अंदर ये हुआ। मुख्य धारा में लाना, इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार। विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाना और उन्हें कुछ विशेष सहयोग सपोर्ट देना। I have told you earlier that giving them some aids, right? Supporting materials, right? यह विचार 1975 में एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड एक्ट यूएस के साथ लोकप्रिय हुआ। ये एक एक्ट बनाया, लॉ बनाया, बेसिकली लॉ का नाम था एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड एक्ट यूएसए। इसके साथ ये ज़्यादा प्रचलित हुआ कि मेन स्ट्रीम के अंदर हमें ऐसे बच्चों को लाना है। ठीक है, इसमें देखिए, अब एग्जांपल देखिए। इन मैनी सीबीएसई स्कूल्स टुडे अ चाइल्ड विद हियरिंग लॉस स्टडीज इन द सेम क्लास एज अदर बट यूजेस हियरिंग एड्स टू गेट हेल्प फ्रॉम द स्पेशल एजुकेटर। जो स्पेशल एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई के स्कूल्स हैं, वहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जिससे कान से, जिसकी श्रवण क्षमता कम है, श्रवण क्षमता जिसकी है वो कम है, ठीक है, राइट, तो उसे भी जो है पढ़ाया जा रहा है। कैसे? विद द यूज ऑफ हियरिंग एड। ठीक है, कोकिलर इम्प्लांट, ठीक है, इनसाइड द कोकिलर इम्प्लांट, कोकिला इम्प्लांट, ठीक है, आउटसाइड द हियरिंग एड, ठीक है, आउटसाइड द ईयर हियरिंग एड। ये डिफरेंट प्रकार के जो एड्स होते हैं, इनसे इनको यूज करके, कि आज कई विद्यालयों में श्रवण विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, श्रवण यंत्र की के विशेष शिक्षक की सहायता के साथ में वो पढ़ रहे हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन, पृथक्करण से समावेशन की ओर परिवर्तन। कैसे है परिवर्तन? देखिए यहाँ पे, दिस ट्रांजिशन मीन्स मूविंग फ्रॉम स्पेशल स्कूल टू इंक्लूसिव क्लासरूम्स टुगेदर। ठीक है, स्पेशल स्कूल क्या थे यहाँ पे? ठीक है, सेपरेट स्कूल, यानी कि इन्हें अलग से पढ़ाया जाता था, सेपरेट स्कूल। तो इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कि ये दिस इज सेपरेट स्कूल और दिस इज इंक्लूसिव क्लासरूम। ये स्पेशल स्कूल है, ये नॉर्मल स्कूल है। यहाँ पे दोनों बच्चों को यहाँ पे इंक्लूसिव स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। दिस इज व्हाट दिस लाइन मीन्स टू से। फोकस हैज शिफ्ट फ्रॉम केयर एंड क्योर टू एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन, की उनकी देख रेख और उपचार की जगह एजुकेशन एंड पार्टिसिपेट, शिक्षा और जो है उनको मौका देना, ठीक है, पार्टिसिपेशन का, भागीदारी का, सहभागीदारी का मौका देना, इसकी तरफ शिफ्ट हो गया है। ठीक है, राइट। डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर सीन एज डिपेंडेंट बट इक्वल लर्नर्स। ये किसी पर निर्भर नहीं है, अब ये इक्वल लर्नर्स की तरह इनको देखा जाता है। ठीक है, हिंदी में देखिए, यह परिवर्तन अलग विद्यालयों से एकत्रित विद्यालयों की ओर बढ़ने का संकेत है। अब लक्ष्य इलाज का संरक्षण नहीं बल्कि शिक्षा और भागीदारी है। अब विकलांग बच्चों को निर्भर नहीं बल्कि समान शिक्षार्थी माना जाता है। ठीक है, समझ गए आप? रियल लाइफ एग्जांपल देखिए इसका। अर्लियर blind children were taught separately in special schools. Now inclusive schools, they use braille books और स्क्रीन रीडर्स एंड लर्न विद अदर चिल्ड्रन। ठीक है, ये देखिए, पहले मैंने आपको बताया, जैसे वहाँ पे हेयरिंग एड का एग्जांपल था, यहाँ पे एक ब्लाइंड चाइल्ड का एग्जांपल है कि ब्रेल लिपि और
कोई एक ऐसी बुक है जिसके अंदर बड़े अक्षर है, कोई जो पूरी पूरी रूप से अंधा नहीं है, उसे कम दिखाई देता है ना, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे बड़े अक्षरों वाली किताबों को हम यूज कर सकते हैं उनको पढ़ाने के लिए, तो ऐसे वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले दृष्टिहीन बच्चे विशेष विद्यालयों में अलग पढ़ते थे, अब वे ब्रेल पुस्तक या स्क्रीन रीडिंग की मदद से सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं। बस इतना ही बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, खत्म हमारा ये टॉपिक पॉइंट। हम आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के लाभ क्या है? इक्वल राइट्स, ऑल चिल्ड्रन गेट इक्वल राइट्स टू लर्न, सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार मिलता है अंडर आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ऑल्सो इट हैज बीन प्रोवाइडेड इन DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, सोशल इंटीग्रेशन प्रमोट्स फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, मित्रता और सहयोग की भावना का विकास होता है जब बच्चे जो कि स्पेशल है और नॉर्मल है वो दोनों एक साथ पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन होगा तो फीलिंग्स एक्सचेंज होगी, फीलिंग एक्सचेंज होगी तो कोऑपरेशन बढ़ेगा, और एक इन्फीरिटी और सुपीरियरिटी की फीलिंग है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, वगैरह वगैरह ये सब चीजें। पॉजिटिव एटीट्यूड्स रिमूव्स फियर एंड प्रेजुडिस टुवर्ड्स डिसेबिलिटीज, ये बताया विकलांगता के प्रति नकारात्मक सोच समाप्त होती है कि कोई बच्चा जो नॉर्मल है वो स्पेशल को ऐसे ना देखे, किसी अलग दृष्टि से ना देखे कि ये तो अजीब है, ये तो विकलांग है, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार की भावना जो है वो खत्म होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज लेस एक्सपेंसिव देन स्पेशल स्कूल्स, विशेष विद्यालयों की तुलना में यह कम खर्चीली है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको दो स्कूल्स खोलने पड़ रहे थे, यहाँ आपका एक में ही काम चल रहा है, इंक्लूसिव स्कूल, तो कम खर्चा अपने आप हो गया। ठीक है, उन्हीं टीचर्स से उन्हीं रिसोर्सेज से हम सब फायदा ले सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ, डिसेबल चिल्ड्रन फील नॉर्मल एंड एक्सेप्टेड, जो डिसेबल चिल्ड्रन हमने पहले पढ़ा, जैसे कि रोमन सभ्यता में और ग्रीक सभ्यताओं में उन्हें अलग थलग रखा जाता था, साइलम्स बनाए जाते थे उनके लिए। ठीक है, स्थल गृह या कारागृह टाइप के जो असाइलम्स होते थे। ठीक है, वहां पर विकलांग बच्चों को सामान्य जीवन का अनुभव अब होता है और उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि यस दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, वी शुड नॉट सी देम एज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, वो भी ह्यूमन है, तो ऐसे। चैलेंजेस ऑफ ट्रांजिशन, देखिए परिवर्तन की चुनौतियां क्या है? ट्रांजिशन किसका? सेग्रीगेशन का इंक्लूजन में। ठीक है, lack of trained teachers, poor infrastructure, no ramp, braille books, aids, negative attitude of peers and teachers, overcrowded classrooms। ठीक है, सेग्रीगेशन से इंक्लूजन की तरफ मूव कर गए। और लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, ऐसे ट्रेन टीचर्स नहीं है कि जो कि स्पेशल बच्चों को, स्पेशल चाइल्ड को पढ़ा सकें। ठीक है, ये पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स के अंदर जो है स्टेयर्स हैं, होने क्या चाहिए रैम्प, अगर ये सुविधा नहीं है तो भी दिक्कत है। रैंप पे इजीली वॉक कर सकते हैं, यहाँ पे मान लो किसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो वो ढंग से अपनी लिम्स को मूव नहीं कर पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा। ठीक है, ये देखिए ओवर क्राउडेड, नेगेटिव एटीट्यूड्स ऑफ पीयर्स एंड टीचर्स की, किसी एक ऐसे डिसेबल्ड चाइल्ड की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड रहना, किसका टीचर का और स्टूडेंट्स का, पीयर्स का, उसके साथ पढ़ने वाले और शिक्षार्थियों का। तो ये भी एक चुनौती है कि उन्हें इस तरह से देखा जाए हीन भाव से, तो वे ढंग से विकसित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये हिंदी में, ये ओवर क्राउडेड क्लासरूम की, एक बच्चे जहां पर बैठने की क्षमता है मान लीजिए 9, आपने बैठा दिए वहां पे 18, डबल। ठीक है, तो ये एक जो है कारण है, ये एक चुनौती है। ठीक है, देखिए आगे, ये मैंने आपको बता दिया। प्रशिक्षण में कमी, विद्यालयों में उचित
संसाधन, रैंप, ब्रेल पुस्तकों की अनुपलब्धि, ठीक है, सहपाठियों या शिक्षकों का नकारात्मक दृष्टिकोण, भीड़भाड़ वाली कक्षाएं, ये कवर हो गया हमारा। देखिए रियल लाइफ एग्जांपल क्या कहता है, इन केंद्रीय विद्यालय चिल्ड्रन विद फिजिकल disabilities study with others, schools provide wheelchair ramps and trained टीचर्स। केंद्रीय विद्यालयों में शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं, विद्यालय उन्हें व्हीलचेयर और रैंप जैसी सुविधाएं देता है। केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, ये सब देता है भाई। In rural government schools, visually impaired students use audio books or braille materials to learn with classmates। ग्रामीण विद्यालयों में दृष्टिहीन बच्चे ऑडियो बुक्स या ब्रेल सामग्री का से सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए वी विल मूव टू द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक। हमने थोड़ा सा बड़ा खींच दिया टॉपिक को स्लो स्लो पढ़ के, बट ये समझ में आना चाहिए इसलिए, ठीक है। कंक्लूसिव देखिए, कंक्लूजन इसमें क्या है, the transition from segregation to inclusion is a journey from separation to unity, from sympathy to equality, from special education to inclusive education. It helps build an inclusive society where child can learn, grow and live with dignity। ठीक है, प्रतिकरण में समावेशन और परिवर्तन एक यात्रा है, अलगाव से एकता की ओर, सहानुभूति और से समानता की ओर और विशेष शिक्षा से समावेश शिक्षा की ओर। यह एक ऐसा समाज की नींव रखता है जहां बच्चा सम्मान पूर्वक जी सकता है, ठीक है। अलग थलग से एकता की तरफ, सिंपैथी से दयालुता की तरफ से इक्वेलिटी की तरफ, समानता की तरफ, और स्पेशल एजुकेशन से इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ, ठीक है। हमने इंक्लूड कर लिया उन बच्चों को भी, ठीक है। ये हिंदी में भी हमने पढ़ लिया है। सो हेयर अवर टॉपिक इज फिनिश्ड, होप यू हैव डन